Hello students. Today we will do second chapter from the book Beehive. The name of the chapter is The Sound of Music. There are two parts in this chapter. Today we will do first part, which is Evelyn Glenn listens to sound without hearing it. Before I start, do you know what is the difference between these two words, listening and hearing? Yes, hearing means just by using your ears, you hear something. But when we say listening, that means you understand that thing. And always teachers say, listen, students. Yes, students, pay attention, listen carefully. That means you have to understand that thing. Okay, and one more thing I would like to share with you. We are the luckiest on this earth that God has bestowed us with all senses, sources, and all our body parts. Have you ever thought about the persons who are physically impaired? How do they feel? How do they overcome their impairment? क्या कभी सोचा है कि जिन लोगों के पास कोई सेंस नहीं होती, आइज़ नहीं हैं, आईसाइट नहीं है, वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, या कोई बॉडी पार्ट उनका ठीक से काम नहीं करता, तो ऐसे लोग जो हैं वो कैसा फील करते होंगे और कैसे वो अपनी इस फिज़िकल जो शारीरिक कमी है उसको कैसे दूर कर पाते होंगे वो. लेट्स रीड दिस चैप्टर. It's very inspiring chapter. Actually, it is a biographical part. It reveals the achievements of the multi-percussionist Evelyn Glenn, who overcame her handicap of hearing impairment with great determination and confidence. तो चैप्टर जो है वो एक मल्टी परक्यूशनिस्ट जो एक म्यूजिशियन है, she used to play drums, tabla, etc. And Evelyn Glenn is her name. और शी इज़ handicapped with hearing impairment. सुन नहीं सकती हैं, वो टोटली डेफ हैं, लेकिन ग्रेट डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस की वजह से वो ओवरकम करती हैं अपनी इस कमी को. द फीचर डिस्क्राइब्स हाउ अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ रॉन फोर्ब्स एवलिन ग्लेनी फाउंड अ वे ऑफ out of her problem by developing an ability to sense music through different parts of her body. तो वो एक मल्टी परक्यूशनिस्ट हैं, एक म्यूजिशियन हैं, और वो सारे अराउंड 1000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती हैं. और एक ऐसा पर्सन जो सुन नहीं सकता, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा कैसे सकता है जब वो सुन नहीं सकता? दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस chapter. So before you read here, God may have taken her hearing but has given her back something extraordinary. कि भगवान ने चाहे उसकी सुनने की पावर ले ली थी, लेकिन उसको कुछ स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट किया था. What we hear she feels, कि हम जो सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, she feels far more deeply than any of us, कि हमसे ज़्यादा डीपली उसको वो फील कर सकती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फोट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. तो आपके पास एवलिन ग्लीन की सक्सेस स्टोरी है, जो कि लड़ती है अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से और डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है. सो हियर we start the chapter. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. The girl Evelyn Glenn is standing at a train platform, which is an underground train platform. And rush hour. Rush hour means it is the busy time of the day. Crowds, that means भीड़ बहुत ज़्यादा है. Jostle means to push roughly, धक्का दे रहे हैं to get some स्पेस. तो रेलवे जो ट्रेन प्लेटफॉर्म है, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बहुत बिजी टाइम चल रहा है. भीड़ एक दूसरे को धक्का दे रही है थोड़ी सी जगह के लिए.
और वहीं प्लेटफॉर्म पर अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स small and thin girl, looking younger than her 17 years. This means the girl is of 17 years, but she is looking less than her age. She is looking younger than her age. Was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. लेकिन वो nervous भी feel कर रही है और as well excited भी है. क्यों? क्योंकि उसको feel हो रही हैं. As we know she can't listen. तो वो फील कर रही है वाइब्रेशंस अप्रोचिंग कमिंग नियर ट्रेन की. तो वो जो स्मॉल थिन गर्ल है वो थोड़ी नर्वस भी लग रही है और एक्साइटेड भी है और वो ट्रेन की वाइब्रेशंस को, जो ट्रेन पास आ रही है स्टेशन पर, उसकी वाइब्रेशंस को फील कर पा रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो उसका फर्स्ट डे है एक प्रेस्टिजियस रिनाउंड रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में. प्रेस्टिजियस मीन्स रेप्यूटेटेड. तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में उसका फर्स्ट डे है. एंड डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, डरावना हो सकता है ये किसी टीनेजर के लिए. फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड के रूरल एरिया से अगर कोई टीनेजर इस इतनी बड़ी एकेडमी में फर्स्ट डे जा रहा है तो इट इज़ ऑब्वियस दैट ही और शी वुड फील नर्वस. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. शी वॉज profoundly tough. Aspiring means a person who wants to be a musician. Aspiring here can be learner, a student musician who wants to be a musician faced a bigger challenge. और भी बड़ा challenge उसको face करना था. She was profoundly deaf. Profoundly here means completely, कि वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती थी और वो म्यूज़िक सीखना चाहती थी और जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. Evelyn Glenn's loss of hearing had been gradual. Gradual means slowly, जो डिग्रीज में होता है, धीरे धीरे होता है. तो एवलिन ग्लेनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग था कि वो सुन नहीं सकती थी, ऐसा धीरे धीरे हुआ कि भाई उसके सुनने की जो पावर थी, कैपेसिटी थी, वो धीरे धीरे कम हुई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. तो जब वो 8 साल की थी एवलिन, वो वेट कर रही थी अपनी टर्न के लिए पियानो बजाने के लिए स्कूल में, और तब उसकी मदर ने नोटिस किया कि भाई कुछ गलत था. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव. तो उसका नाम बुलाया जा रहा था लेकिन उसकी टर्न थी पियानो प्ले करने की, बट शी डिडंट मूव, क्योंकि उसको सुना ही नहीं, इसीलिए वो हिली नहीं. मदर इज़ टेलिंग ऑल दीज थिंग्स. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड. तो मदर कह रही हैं कि उनको अचानक से रियलाइज़ हुआ कि उसने तो सुना ही नहीं. सेज एसाबेल ग्लेनी. Isabel Glennie is mother of Evelyn Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कि कुछ टाइम तक तो एवलिन ने मैनेज कर लिया कंसील करना, हाइड करना. क्या चीज़ हाइड की? उसने अपनी ग्रोइंग, बढ़ती हुई डेफनेस को फ्रेंड से और टीचर से. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा वो 11-year-old हुई तो उसके जो मार्क्स थे, स्कोर्स थे, वो डेटराइटेड होने शुरू हो गए, डिक्रीज होने शुरू हो गए, गोइंग डाउन, मार्क्स वर गोइंग डाउन. एंड हर हेड मिस्ट्रेस, जो स्कूल हेड थी, उन्होंने अर्ज की, रिक्वेस्ट की पेरेंट्स को कि वो उसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. It was then discovered that her hearing was severely affected. तो तब ये बात पता चली कि जो उसकी हियरिंग पावर थी वो सीवियरली मीन्स बैडली, कि बुरे तरीके से इम्पेयर्ड हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. ग्रेजुअल मीन्स दैट हैपन्स इन डिग्रीज.
स्लोली, जो धीरे धीरे डिग्रीज में होता है, नर्व डैमेज के कारण, नर्व्स के डैमेज होने के कारण बहुत बुरे तरीके से उसकी जो हियरिंग पावर थी वो वीक हो चुकी थी. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. तो फिर एडवाइस दी गई पेरेंट्स को कि उसको हियरिंग एड्स से दी जाएंगी और उसको एक डेफ बच्चों का जो स्कूल है, जो सुन नहीं सकते, उन बच्चों के स्कूल में उसको भेजा जाएगा. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. तो एवलिन कहती हैं कि सब कुछ टोटली ब्लैक दिखने लगा था. दैट मीन्स वो बिल्कुल होपलेस हो गई थी. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. गिव अप मीन्स टू सरेंडर, छोड़ देना. लेकिन वो ऐसी नहीं थी, वो छोड़ने वाली नहीं थी, गिव अप करने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. वो पूरी फुल डिटर्मिन थी. दैट मीन्स शी हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर टू लीड अ नॉर्मल लाइफ and pursue, continue her interest in music. One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. और एक दिन उसने एक गर्ल को नोटिस किया xylophone बजाते हुए और डिसाइड किया कि वो भी बजाएगी. Here you can see in the picture xylophone is given. This is called xylophone. This is a music instrument with a row of wooden bars. These are wooden bars and of different length of wooden bars are here, and it is played using two rods. You can see the rods here. But Evelyn, one day she noticed a girl playing xylophone and decided that she also wanted to play that. But most of the teachers discouraged her. But percussionist Ron Forbes spotted her potential. Percussionist here means the person who plays drum, tabla, etc. And the name of that person is Ron Forbes. उन्होंने स्पॉट किया, ऑब्जर्व किया उसके पोटेंशियल को, उसकी कैपेसिटी को, उसके स्किल्स को. बट बाकी के टीचर्स ने क्या किया, उसको डिस्करेज किया कि उसके बस का नहीं है. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. तो रॉन फॉर्ब्स ने दो बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पर, इन म्यूज़िक लाइक वी हैव हाई नोट, शॉर्ट नोट, मीडियम नोट, तो उन्होंने लार्ज ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पर बजाना शुरू किया. और वो क्या कहते थे, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. कि कानों से मत सुनो, इसको किसी दूसरे तरीके से सेंस करने की कोशिश करो. एवलिन बताती हैं, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. तो एवलिन कहती हैं कि उनको रियलाइज़ हुआ कि वो हायर ड्रम को वेस्ट के ऊपर के पार्ट से और लोअर वन को वेस्ट के कमर के नीचे वाले पार्ट से फील कर सकती थी. सुन नहीं सकती थी बट फील कर सकती थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. तो फोर्ब्स जो थे, टीचर जो थे, वो यही एक्सरसाइज रिपीट करते रहते थे, बार बार एक्सरसाइज करवाते थे उसको. And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और जल्द ही एवलिन को ये पता चल गया कि वो जो पर्टिकुलर नोट्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी पर, अपनी बॉडी में वो फील कर सकती थी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. कि उसने सीख लिया था माइंड से और बॉडी पार्ट से साउंड्स और वाइब्रेशंस को फील करना. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. शेयर हेयर मीन्स फुल, प्योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. सो हेयर what we have read, that Evelyn persuaded her dream and eventually made her way to the Royal Academy of Music in London. Then her mother came to know about her daughter's deafness at the age of 8, and when her deafness was confirmed at the age of 11, headmistress of her school suggested that she should be sent to school for deaf children. But Evelyn was not the kind of girl who could be discouraged, and she was demotivated, discouraged by the teachers from playing upon xylophone. But Ron Forbes,
who was a great percussionist, came to her rescue. He observed great potential in her and guided her how to sense music through different part of her body without listening through ears. She then opened her mind and body to sense the sounds and vibrations of musical instruments. Uh, Rest of the paragraphs will be explained in the next video.